مسیح کے جلالی بابرکت فاتح نام میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ سب کو آداب عرض کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، پریز جیسس۔ کتنے ہیں جو آج ہم خوش و خرم خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں؟ ہاللیلویا۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم کس کے حضور میں ہیں؟ بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور میں۔ ہم اس کے تخت کے نیچے آ چکے ہیں تاکہ اس کے جلال سے بھر سکیں، تاکہ ہم اس کی حضوری سے، اس کی معموری سے بھر سکیں، تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دینے کے لیے یہاں اکٹھے بیٹھ کر اپنی آوازوں کو، اپنے قدم کو اس کے نام کے لیے استعمال کر سکیں۔ یہ جو دور اس وقت چل رہا ہے وہ ایڈونٹ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ ہم جو ہے وہ آج دوسرے سنڈے پر، کیونکہ ہم نے لاسٹ سنڈے کس پہ سیکھا تھا؟ مجھے first hope and then peace, then joy, and the last one is love. I've told you last time کہ first two Sundays are in relation with Jesus Christ، کہ وہ یسوع مسیح سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ باقی دو سنڈے بھی اسی کے وسیلہ سے آتے ہیں، لیکن وہ دو سنڈے ہمیں ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ یسوع تو جوائے میں ہے نا، وہ تو ہر وقت خوش ہے، سانوں خوشی لین کی لوڑ پیندی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو تھرڈ سنڈے ہے اور فورتھ سنڈے ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح کی دی ہوئی خوشی، اس کا پیار ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جو دوسرا، جیسے ہم نے کہا کہ فرسٹ کیا سیکھا تھا ہم نے؟ ہوپ۔ کچھ یاد ہے کسی کو؟ کن باتوں پر غور کیا تھا ہم نے؟ امید پر۔ کتنے پوائنٹس تھے؟ کچھ تھوڑا سا ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اگر کہیں مس ہو جائے کوئی چیز تو اسے جو ہے، یہ امتحان نہیں ہے میرے عزیزوں، میں پہلے بتا رہا ہوں، یہ سیکھنے کا طریقہ ہے۔ چل 3 پوائنٹس، ہاں جی 3 پوائنٹس تھے، ہم نے 3 باتوں پر غور کیا تھا۔ 3 کیونکہ یہ آمد سے ریلیٹڈ ہے، اس کا تعلق امید سے ہے، تو 2 امیدیں وہ ہیں جو انبیاء کرام کے وسیلہ سے سکھا دی گئی تھی، جو بتا دی گئی تھی، میکا کے وسیلہ سے، پھر عیسیٰ بن اموس کے وسیلہ سے بتایا گیا تھا، پیشین گوئیاں کی گئی تھی، بتایا گیا تھا کہ وہ آنے والا ہے، یہ امید تھی۔ پھر جب وہ آ گیا تو جب وہ یہاں تھا تبھی اس نے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں کیا دوں گا؟ مددگار۔ یہ ایک اور امید تھی، لیکن وہ مددگار اس وقت آیا جب یسوع مسیح یہاں سے اس جہان فانی سے جو ہے وہ آسمان پر چلے گئے۔ لیکن پھر جو دوسری بات جو ریپچر کی صورت میں ہے، جو دوسری آمد کی صورت میں ہے، وہ تھا تیسرا پوائنٹ جس میں بتایا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اب انتظار کرنا ہے کہ وہ بادلوں پر آئے گا کہ اسی بھی اٹھ کے ودا استقبال کرنا۔ آمین۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور میں نے جب لاسٹ سرمن ختم کیا تھا تو میں نے اس پہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم پیس کو ٹچ کر رہے ہیں، لیکن آج ہم اسے پورے طریقے سے سکھائیں گے۔ ہاللیلویا۔ پیس کیا ہے؟ پیس، واٹ از دا ڈیفینیشن آف پیس؟ اینی ون؟ یا گو آن۔ Thank you very much. Very well done, Jonathan. کچھ پوائنٹس جوناتhan نے ہائی لائٹ کیے ہیں، انڈیکیٹ کیے، کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہو؟ جی پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ جی
eternal calmness. Absence of conflict. Anyone else? Sound-minded. Yeah. Comfort. Well done. Zeni Sukoon. Sister Sumaira ने भी इसी पॉइंट को हाईलाइट किया है. Well done. मुझे दिल से खुशी हो रही है कि मेरे नाल तुसी सारे ही शामिल हो. हालेलुया. एक्टिवली जब आप सुनते हैं तो मैंने भी खुशी होती है कि जब मैं दस रहा हूँ तो फिर something gaining out of it. That means you are quite attentive. You are listening. The one who's talking in front of you. और ये एक encouragement होती है एक pastor के लिए, एक खादम के लिए, एक speaker के लिए, एक preacher के लिए कि उसके सामने जो लोग बैठे हैं वो गूंगे थे बहरे नहीं ने वो जो है क्या है वो actively effectively उन चीजों को अपनी जिंदगी में ले रहे हैं. हालेलुया. मेरे अजीजों ये जो बातें सारी आप सब ने मिलकर पीस की डेफिनेशन को एड अप किया है उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट उसको बयान कर देता हूं कि पीस इज द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्टर्बेंस, डिस्टॉर्शंस, हैविंग full calmness in your life, full comfort in your life, full peace, like where you feel that I'm in a very calm place where no disturbances. Hallelujah. और मेरे अजीजों जो इत्मीनान तसल्ली जिंदगी के अंदर होता है ये सिर्फ जिस्म के अंदर की नहीं है, ये आपके बाहर की भी है, आपकी सराउंडिंग में भी है, आपकी जिंदगी में जहां आप मौजूद हैं वहां पे आपकी एनवायरनमेंट के अंदर आप उस कामनेस को सस्टेन कर रहे हैं. That's something called peace. What is it? Peace. और जब मैं इस पर गौर कर रहा था तो मेरे अजीजों पीस जो है वो एक जिंदगी का नॉर्मल फिनोमेना या बेसिक फंडामेंटल स्टफ है हमारी जिंदगी का. हर जिंदगी, हर खानदान, हर फैमिली चाहती है कि वो जिंदगी ऐसे एनवायरनमेंट में गुजारें जहां कामनेस हो, जहां पर क्या हो, कामनेस हो, कोई डिस्टर्बेंस, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो. आज दुनिया पीस के पीछे दौड़ी चली जाती है. हर शख्स, हर खानदान, हर कलीसिया इस तरह ढूंढ रही है कि कब और कैसे मेरे खानदान की जिंदगी में जो है वो तसल्ली, इत्मीनान, सुलह, सलामती हमेशा मौजूद है. कौमें सलामती के लिए भागती है, मुल्क सलामती के लिए जो है वो इस बात के लिए तलब कर रहे हैं. अब जंगो जदल देखें, जहां बहुत सारे ममालिक हैं जहां पर इस वक्त जंग का सा माहौल. हम पिछले दिनों में इसराइल और फलस्तीन के बारे में सुन रहे थे, हम रशिया और यूक्रेन के बारे में सुन रहे थे, और कई पाकिस्तान इंडिया के हवाले से भी है. कई लोग अमन का गहवारा बनकर उन लड़ाइयों के बीच में उतरते हैं ताकि क्या करें कि उनके अंदर अमन कर दिया जाए. लेकिन मेरे अजीजों जो दुनिया हमें देती है वो अमन वक्ती तौर का है. वो बातों से हो सकता है, वो अल्फाजों से हो सकता है, वो गुफ्तगू से हो सकता है, लेकिन एक ऐसी हस्ती हमारे पास है जो इससे कई गुना ज्यादा ऊंचा और जिसे हम कहते हैं कि माफौकल फितरत कुव्वत काम करके हमारी जिंदगी में सुपर नेचुरल पावर हमारी जिंदगी में काम करती है और हमें सुलह से रोशनास करा देती है. आमीन. फिर उसके बाद
अक्सर बेशतर कुछ लोगों का ख्याल होता है फलाने घर जावांगा तो उत्थे मैनूं इत्मीनान मिलेगा। हाँ जी, फलानी चीज मेरे घर आ जाएगी ना तो मैनूं मेरी जिंदगी च सुकून आ जाएगा, ज़हनी सुकून। हाँ जी, ये हमारे ख्यालात हैं, ये हमारी बातें हैं, ये हमारी सोचें हैं जिसके वसीला से हम सोचते हैं कि फलान चीज के साथ पीस का ताल्लुक है। If we get that, we'll be peaceful. अगर वो घर ले लेंगे या उस घर में चले जाएंगे तो हमारी जिंदगी में सलामती आ जाएगी, सुलह आ जाएगी, इत्मीनान आ जाएगा। हम जो है क्या करेंगे, हम मुकम्मल इत्मीनान में आ जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, मैं एक और बात आपको ये बताना चाहता हूँ। इत्मीनान, तसल्ली, सुलह और सलामती का ताल्लुक किसी जगह या चीज से नहीं है, उसका ताल्लुक उस शख्सियत से है। आइए हम कलाम मुकद्दस की उस आयत पर गौर करते हैं जो हमारी मरकज़ी आयत है। Isaiah chapter 9 from Old Testament verse 6। पुराने अहदनामा में से यशाया नबी का लिखा गया सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत। जो निकाल ले आमीन कह सकता है। आमीन। और जी इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और जी, और हमको एक बेटा बख्शा गया, और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और ये जो आखिरी हिस्सा है इस पर आज हम गौर करेंगे, सलामती के शहजादे पर, यानी प्रिंस ऑफ पीस। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम इस पर गौर करते हैं कि एक लड़का तवल्लद होगा, एक बेटा बख्शा जाएगा, सल्तनत उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और वही शहजादा हमारी जिंदगियों में जब उतरेगा तो हर किस्म का इत्मीनान, वही शहजादा जब हमारे पास आ जाएगा तो सलामती हमारी जिंदगियों का हिस्सा, वही शहजादा जब हमारे मुल्कों में आ जाएगा तो अमन हर वक्त हमारे मुल्कों में कायम रहेगा। हम जंगो जदल से दूर रहेंगे, हमें कोई किसी भी तौर पर जो है वो मुश्किल परेशानी में डाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे साथ सलामती का शहजादा मौजूद है। हालेलुया, प्रेज जीसस। मैं जब इन आयात पर गौर कर रहा था तो एक बात पर मेरा ध्यान गया कि ये सलामती कोई आम सलामती नहीं है। कहा है कि एक बेटा बख्शा गया, और कुछ ट्रांसलेशंस में इस बख्शिश को गिफ्ट का भी नाम दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सलामती कोई आम सलामती नहीं, ये तोहफा है आसमान से खुदा की तरफ से हमारे लिए, ताकि हम उस तोहफे को अपनी जिंदगी में ले लें, उस गिफ्ट को अपनी जिंदगी में ले लें, ताकि जब गिफ्ट हमें मिल जाता है तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ गिफ्ट। तो जब हमें खुदा की तरफ से एक बेटा गिफ्ट की सूरत में मिल गया है तो ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਚ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। क्यों नहीं हम खोल के दिखाते? क्यों नहीं हम बताते कि हमारे अंदर तसल्ली, इत्मीनान, सलामती, सुलह इसलिए मौजूद है क्योंकि हमें वो बेटा बख्शा गया है जो तोहफे की सूरत में, सलामती की सूरत में हमारी जिंदगियों में उतर आया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज जीसस। और मेरे अजीजों, जो बादशाह, जो शहजादा, जो प्रिंस सलामती को लेकर आसमान से हमारे पास आया था, उसकी तसल्ली कैसी थी?
यूहन्ना 14:27 निकालिएगा। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 27वीं आयत। हालेलुया। जी पढ़िए। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। अपना इत्मीनान किसी और का नहीं। इस इत्मीनान का ताल्लुक किसी और से नहीं है। वो अपना इत्मीनान किन्ने ऐसी जड़ी अपनी शायद किस्म देना पसंद करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मेरे पास अच्छी से अच्छी चीज मौजूद हो, लेकिन मेरा खुदा जो सलामती का शहजादा कहलाया, उसने अपना इत्मीनान हमें दिया। जी आगे। जिस तरह दुनिया देती है, जिस तरह दुनिया देती है, मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। यानी दुनिया से उसका इत्मीनान मुख्तलिफ है, उसका इत्मीनान डिफरेंट है, उसका इत्मीनान दुनिया से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जी। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। साथ ही हमें हौसला भी दे दिया कि जेड़ा मेरा इत्मीनान है ना, दुनिया नहीं दे सकती। दुनिया जो हमें देती है वो महज लफ्ज हो सकते हैं। They can only be the sentences, they can only be the words, but खुदावंद का इत्मीनान जो है वो हमारी जिंदगी में उतर जाता है, और वही इत्मीनान हमें फिर हमें संभाले रखता है। ऐसा इत्मीनान जो दुनिया नहीं दे सकती। अक्सर और बेशतर लोग परेशान होते हैं आपस में, जब हम किसी के साथ बहुत क्लोज होते हैं तो फिर हम उनके पास जाके कहते हैं, भाई जी, बहन जी, चलो फिर जी में खुदा दी मर्जी। क्या ये अल्फाज लोगों को तसल्ली देते हैं? नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये महज अल्फाज हैं। जब हम ये कहें कि खुदा ने ऐसा दिन मुकर्रर कर दिया है कि जिन्हें आपने खोया है इन्हें फिर देखेंगे, ये कैसा इत्मीनान है। आमीन। ये वो होप है, ये उम्मीद है जिसके वसीला से एक इत्मीनान हमारी जिंदगी में, तसल्ली हमारी जिंदगी में आ जाती है कि आज जिन्होंने मसा अपनी जिंदगी तो खैर बात क्या है, आज के बाद वो फिर दोबारा हमें मिलेगा। तो यानी कहने का मकसद है कि जो इत्मीनान, जो तसल्ली जो दुनिया देती है वो मुख्तलिफ है, वो वक्ती तौर पर है, वो हमारे साथ नहीं चल सकती। लेकिन खुदा का दिया हुआ इत्मीनान हमारे साथ खड़ा है, वो हमारे पास है, वो हमारे साथ चलेगा। हम बैठेंगे तो हमारे पास है, हम उठेंगे तो हमारे साथ खड़ा होगा, हम चलेंगे तो हमारे साथ चलेगा, हम बात करेंगे तो वो इत्मीनान सलामती हमारी जिंदगी में नजर आएगा, और उसका चेहरा इत्मीनान की सूरत में हमारे चेहरों पर क्या करेगा? जलवा घर होगा, और सलामती और इत्मीनान हमारे चेहरों पर जो है वो नजर आएगा। आमीन। क्योंकि उसका इत्मीनान दुनिया जैसा नहीं है, उसका इत्मीनान दुनिया से मुख्तलिफ है, उसका इत्मीनान ऐसा है जिसको हम दुनिया से हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया। समझ आ रही है अभी तक? हालेलुया। मेरे अजीजों, ये वो इत्मीनान है जो यीशु मसीह हमें देता है, जो कि बेचैन दिलों में चैन पैदा कर देता है। जो रेस्टलेस होते हैं उनकी जिंदगी में रेस्ट आ जाता है। जो बे आराम होते हैं वो आराम से फैज याद होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इत्मीनान हमें हमारी जिंदगियों में आ गया है। जो मुजरम ज़मीर होते हैं उनकी जिंदगियों में मुआफी आ जाती है इस इत्मीनान के वसीला से। जो गमगीन रूहें होती हैं वो तसल्ली पाती हैं। जो तसल्ली खुदा की तरफ से मिलती है, और उसी के लिए, उसी इत्मीनान के लिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, इसलिए तुम्हारा दिल ना घबराए, ना तुसी परेशान हो, ना तुसी खौफ करो। क्योंकि जिन जिंदगियों में खौफ है, जब उसका इत्मीनान हमारी जिंदगी में आ जाता है तो वहां से खौफ जाता रहता है। आमीन। आमीन। ये है वो इत्मीनान।
जहां मुश्किल आ जाए जिंदगियों में, वहां मेरा यीशु मुश्किल कुशा बनकर खड़ा हो जाता है। जहां बीमारी आ जाए जिंदगियों में, वहां मेरा यीशु शाफी बनकर खड़ा हो जाता है। जहां पर किसी चीज का कोई हल ना निकल रहा हो, मेरा यीशु हले मुश्किलात बनकर खड़ा हो जाता है। ये है इत्मीनान उसका, ये है बातें उसकी, ये है डिफरेंस दुनिया का और खुदा का। क्योंकि जब हम उसके इत्मीनान को अपनी जिंदगी में लेते हैं, तो मेरे अजीजों, वो फिर हमारी जिंदगी में तसल्ली और इत्मीनान बनकर उतरता है। और फिर जब हम बात करते हैं कि असी ते हर वेले मुश्किल ची पै रही हैं, हुण की करिए, तो मेरे अजीजों, इसका भी कलाम जवाब देता है कि जहां पर मुश्किल परेशानी है, वहां पर उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी, उसका मसा, उसका रूल कुदरत हमारी जिंदगियों में खड़ा होकर हमें थाम लेता है। हम यीशु के शागिर्दों से वाकिफ हैं। यीशु कश्ती में सो रहा था और झील में तूफान आ गया। यीशु तो मौजूद सी, तूफान का क्यों आया? कहने का मेरा मकसद ये है मेरे अजीजों, इसको समझने की कोशिश करें। अक्सर बेशतर लोग कहते हैं कि अगर साड़ी जिंदगी च यीशु है तो फिर असी परेशानियां तो दो चार क्यों होंगे। फिर अगर हम मुश्किलों में हैं तो फिर यीशु ने हमें अभी तक थामा क्यों नहीं? मेरे अजीजों, जो शागिर्द हैं वो यीशु के पास जाके कहते हैं, हम मरे जाते हैं और तू यहाँ सोता है। यानी उनकी जुबान से उनके मुंह खुला और उन्होंने यीशु मसीह को दावत दी अपनी जिंदगी में, आ और इस तूफान को थमा दे। तूफान उस वक्त तक नहीं थामते जब तक हम उसे आवाज नहीं देते। और फिर वो जो हमारी जिंदगियों में खड़ा हो जाता है, तो वो बड़े बड़े तूफानों को थमा कर रख देता है। बड़ी बड़ी मुश्किलें जो पहाड़ बनकर हमारी जिंदगियों में खड़ी होती हैं, उन जो है पहाड़ों को वो मैदान कर देता है। हालेलुया। जहां पर किसी चीज की उम्मीद ना हो, वहां पर वो, जहां ना उम्मीदी है, वहां मेरा यीशु उम्मीद बनकर उजागर होता है। सहराओं में जहां पानी नहीं है, वहां से वो क्या करता है? पानी बहा देता है। क्यों? क्योंकि मेरा यीशु मुख्तलिफ है। क्या है? उसका नाम अजीब। उसका नाम ए वो वाला अजीब नहीं जड़ा सी अक्सर कहते हैं। He is wonderful, he is different from others. That's why we call him अजीब। बोले कम अजीब, कमारी से पैदा हो जाना अजीब बात नहीं तो और क्या है? लेकिन ये खुदा की कुदरत भी है at the same time। तो मेरे अजीजों, जो कुछ उसके बारे में कहा गया है, वो उसकी जिंदगी में हमें नजर भी आता है। और हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि जहां पर मुश्किलें हैं, जहां पर परेशानियां हैं, वहां घबराने की जरूरत नहीं है। वहां अपने यीशु मसीह को आवाज दें, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, आ मेरी जिंदगी में और आ मुझे थाम ले, ताकि मैं बहाल हो जाऊं। ये जो लहरें मेरे खिलाफ उठती हैं, मुश्किल की, परेशानियों की, मुखालफतों की, इज़्दिवाज के सफर में प्रॉब्लम्स की, या फिर रिश्तों में जो किसी भी तौर पर प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबको बहाल करने की कुदरत एक ही शख्सियत रखती है, और वो है मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे अजीजों, जहां बहाली नहीं आ सकती, वहां मेरा यीशु मसीह बहाली ले आता है। जहां गुलामी है, वहां यीशु मसीह जो है वो आजादी को खुद अपने तौर पर खड़ा कर देता है, ताकि हम कह सकें कि अब हम गुलाम ना रहे। उसने हमें पैदा किया है किस चीज के लिए? आजाद रहने के लिए। और यही बात जो है हमारी जिंदगी में पीस लाती है। घर में कोई मुश्किल हो, चेहरे उतर जाते हैं एकदम ही, मिनट लगता है, मिनट भी ज्यादा कहता है, सेकंड्स लगते हैं। प्रॉब्लम्स आ जाए घरों के अंदर, तबाह बर्बाद करके रख देती हैं ये चीजें। लेकिन अगर यीशु मसीह उस घर का राखा है, उस घर का बनाने वाला है, अगर यीशु मसीह उस घर में रहता है, अगर यीशु मसीह उस घर का कंट्रोल ले चुका है, तो मेरे अजीजों, वहां पर पीस ही पीस मौजूद रहेगा। शैतान जितना भी कोशिश करे, शैतान जितनी भी जो है वो चालें चले, लेकिन उसकी चालें क्या है? वो ज़ाइल हो जाएंगी, क्योंकि मेरा यीशु मसीह उसे पांव तले कुचल चुका है। हालेलुया।
मेरे अजीजों, उसके वादों पर, उसकी हजूरी पर इत्मीनान करना सीखें, भरोसा रखना सीखें, तवक्कल करना सीखें और ध्यान लगाना सीखें, तो फिर आपकी जिंदगियों में जो है वो बहाली ही बहाली होगी। और जब हमारा ध्यान बच जाता है, जब हमारे ख्यालात इंतशार की नजर हो जाते हैं, तो मेरे अजीजों फिर हम शैतान के कब्जा में चले जाते हैं। और अगर हमें उसके कब्जा में नहीं जाना, तो अपने यीशु मसीह को कहें कि उन ख्यालात को, जो ख्यालात को मुंतशिर करने की कोशिश करती हैं, मैं उनको तेरे हाथों में दे देता हूं, ताकि तू मुझे थामे संभाले और अपने पर छिपाए रखे। हालेलुया, प्रेज जीसस। हमने खूब सीखा कि यीशु मसीह के वसीला से हमारी जिंदगियों में क्या हो सकता है? तसल्ली, इत्मीनान, सलामती, सुलह आ सकती है। अब खास बात जिसके साथ मैं खुदा के जिंदा कलाम को क्लोज अप करूंगा, यशायाह 26 बाब और उसकी 3 आयत, जरा मेरे साथ निकाल कि ये तसल्ली, ये सलामती, ये इत्मीनान किसकी जिंदगी में रह सकता है? जो निकाल ले आमीन कह सकता है। पुराने अहदनामा में से यशायाह 26 बाब और उसकी 3 आयत। जी जिसका दिल कायम है तो उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। हालेलुया। सलामती किसको मिलेगी? जिसका दिल कायम है। जिसका दिल कायम ना होवे ते एहो जी होप्स लगाना छड़ दे उस जिंदगी। एक्सपेक्टेशंस अक्सर बेशतर हमें जो है वो गिरा देती है। और खुदा का जिंदा कलाम यहां हमें सिखाता है कि जिसका दिल कायम है, किदे नाल? एक दूजे दे नाल, खुदा के साथ। अटेंशन प्लीज। जिसका दिल खुदा के साथ कायम है, वो हमेशा जो है आगे बढ़ सकता है। और कायम होने के लिए जरूरी ये है कि हम खुदा के अहकाम पर ध्यान लगाएं। जरूरी ये है कि हम उसकी बातों को सीखें। जरूरी ये है कि हम उसके हुजूर में रोज कलाम की बातों को पढ़ें, हम उसके हुजूर में दुआ करें, ताकि हमारा दिल पाक हो जाए। और मुबारकबादी हमने सीखी थी, और उसमें से एक मुबारकबादी थी, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि सलामती का बादशाह सुलह कराने के लिए इस दुनिया में आया, ताकि बाप और बेटे और रूह कुदस के वसीला से इंसान जो उनके दरमियान में खला आ चुकी है, उसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे, ताकि क्या हो कि बाप के साथ हमारा राब्ता फिर बहाल हो जाए, ताकि वो सुलह दोबारा हो जाए, जो गुनाह के वसीला से गुलामी में जा चुकी थी, जो गुनाह के वसीला से जो है वो जंग जदल की नजर हो चुकी थी, और उससे आजाद करने के लिए बेटे ने इस दुनिया में जन्म लिया, ताकि हमें क्या हो कि हम सलामती के बादशाह को अपने अंदर लें, उसमें कायम रहें, उसमें बढ़ें, उसके नाम को जलाल दें, उसकी बातों को सीखें, उसके कलाम को अपने दिल में रखें, जिसके लिए दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और यही बात हमारा खुदा, हमारा यीशु मसीह चाहता है कि हम हर उस गुनाह से पाक हो जाएं, ताकि हम उसके साथ कायम हो सके। दो दिले या दिलों में जिनके कोई डाउट्स है, वो खुदा के साथ कायम नहीं रह सकते। और मेरे अजीजों, उसके लिए लिखा है कि उसका तवक्कल तुझ पर है। तवक्कल किस पर करते हैं? खुदा पर, जिस पर आपको भरोसा हो, जिससे आप उम्मीद हो, जिससे आपको पता हो कि मैं इससे कुछ मांगूंगा तो ये मुझे इनकार नहीं करेगा, मैं इससे कुछ लूंगा तो ये कुछ भी मांगूंगा तो ये मुझे दे देगा। और खुदा ही एक ऐसी ज़ात इलाही है जो हमें किसी भी तौर पर जो है वो पीछे नहीं करती। हम उस पर आंखें
ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਵੇ। लेकिन खुदा जिसके साथ हम कायम है, ना वो हमें धोखा देता है, ना वो हमसे पीछे हटता है। और जब हम उसमें कायम हो जाते हैं तो उसकी दी हुई सलामती हमारी जिंदगी में जो है वो मौजूद हो जाती है। और वो चाहता ये है कि मैं आया था सलामती तुम तक पहुंचाने के लिए, अब तुम्हारा काम है कि उस सलामती को लेकर दुनिया में बांटो। और इरशाद आज़म क्या है, ग्रेट कमीशन क्या है? बस तुम जाओ, सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस से बपतिस्मा दो। तो क्या होगा जब ये काम हम करेंगे? तो मेरे अजीजों, जो सलामती हमें यीशु मसीह से मिली है, वो सलामती हम आगे दे रहे हैं। खुदा आप सब इस कलाम के वसीले से बरकत दे।